بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل کس چیز کے بارے میں ہے؟ فصل وہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، فصل فی المفرد المتحد المعنی، یعنی یہ فصل اس مفرد کے بیان میں ہے جو متحد المعنی ہے، یعنی جس کے معنی ایک ہے۔ متحد المعنی کا مطلب کیا ہوا؟ ایسا لفظ جس کے ایک معنی ہو، جیسا کہ رجل، اس کا مطلب ہے آدمی۔ مثال سے آپ اس کو سمجھ لیجیے گا کہ ایک لفظ ہے رجل، مطلب کیا ہوا؟ ایک آدمی، ایک آدمی۔ اور ایک ہے لفظ فرس، اس کا مطلب ہے ایک گھوڑا۔ تو یہ ایک ایسا لفظ ہے رجل اور فرس کہ ان کے معنی ایک ہے، تو اسے کہتے ہیں متحد المعنی۔ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے معنی ایک سے زائد ہوتے ہیں، جیسا کہ لفظ ہے قوم، لفظ تو ایک ہے لیکن معنی کتنے ہیں؟ ایک سے زیادہ، یعنی بہت سارے آدمی، پوری قوم، پوری ملت، بہت سے آدمی، انہیں کہتے ہیں قوم۔ اسی طرح ملت، امت، یہ ایسے الفاظ ہے کہ ان کا معنی ایک سے زائد ہے، انہیں کہتے ہیں متکثر المعنی۔ تو اس کیٹیگری کو کیا کہے گے؟ متحد المعنی، متحد المعنی۔ اور اس کیٹیگری کو کہے گے متکثر المعنی۔ چلیے اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ فصل فی المفرد المتحد المعنی، یہ فصل اس مفرد کے بیان میں ہے کہ جس کے معنی مفرد ہوتے ہیں۔ قد یقسم المفرد بتقسیم آخر، کبھی کبھی مفرد کو ایک دوسری تقسیم کے ساتھ، ایک دوسری کیٹیگری میں، ایک دوسری تقسیم میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی مفرد کو تقسیم کیا جاتا ہے ایک دوسری تقسیم کے ساتھ، وہ ہوا، اور وہ یہ ہے ان المفرد اما ان یکون معناہ واحدا او یکون کثیرا، اور وہ یہ ہے کہ مفرد یا تو ہوں گے اس کے معنی ایک، یا پھر ہوگے اس کے معنی بہت زیادہ۔ تو پہلی فصل متحد المعنی کی ہے، تو اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں والذی لہ معنی واحد علی ثلاثۃ اضرب، وہ کیٹیگری، وہ تقسیم جس کے معنی واحد ہوتے ہیں، وہ کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسموں پر ہے۔ اب 3 قسمیں کون کون سی ہے پہلے وہ سمجھ لیجیے گا، پھر اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب دیکھیں گے۔ پہلی قسم کا نام ہے علم، دوسری قسم کا نام ہے متواطی، اور تیسری قسم کا نام ہے مشکک۔ یہ 3 قسمیں ہو گئی۔ اب آپ کا سوال یہی ہوگا کہ اس کی 3 قسمیں ہی کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے یہاں سے دلیل حصر شروع کر رہے ہیں۔ دلیل حصر کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، اس کا جواب، یعنی اس کی جو 3 قسمیں آتی ہے متحد المعنی کی، وہ 3 ہی قسمیں کیوں آتی ہے، اس کی دلیل حصر یہ ہے لِأَنَّهُ، اس لیے کہ لا یخلو، یہ خالی نہیں ہے اس حال سے کہ اما، یا تو ان یکون ذالک المعنی متعینا مشخصا، اس لیے کہ خالی نہیں ہے اس حال سے کہ یا تو وہ معنی متعین ہو گئے اور مشخص ہو گئے۔ متعین کہتے ہیں کہ جو طے شدہ ہو، اور مشخص کہتے ہیں کسی خاص چیز کا ہو، نام ہو، کسی خاص چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہو، مشخصاً، متعیناً مشخصاً۔ ترجمہ ہم اسی طرح ہی کریں گے، یہ چیز میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اس لیے کہ خالی نہیں ہے وہ اس حال سے کہ یا تو وہ معنی متعین مشخص ہو گئے، او لم یکن، یا پھر وہ متعین و مشخص نہیں ہوں گے، یا تو ہو گئے یا نہیں ہو گئے۔ اگر ہے یعنی وہ معنی متعین بھی ہے اور مشخص بھی ہے، والاول یسمى علما، تو پہلا یعنی جس کے معنی متعین ہو، مشخص ہو، نام رکھا جاتا ہے اس کا علم، جیسا کہ زید،
कज़ैदिन वहाज़ा वहुआ, ये 3 मिसालें दी है, जैसा कि ज़ैद, हाज़ा और हुआ। ज़ैद के साथ तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि ज़ैद एक आलम है, एक चीज़ का नाम है, लेकिन हाज़ा और हुआ ये तो आलम नहीं है, ये तो इसमें इशारा है। जनाब आलम की जो मिसाल आपने पढ़ी है अरबी अव्वल के अंदर, वो ये पढ़ी है कि किसी ख़ास चीज़ का या किसी ख़ास शहर का या किसी ख़ास जगह का नाम हो। जैसा कि ज़ैद किसी ख़ास चीज़ का नाम है तो इसको हम कह देंगे कि ये आलम है, लेकिन हाज़ा और हुआ ये तो इसमें इशारा है, ये किसी ख़ास चीज़ का नाम नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि इसका नाम आलम न रख करके जुज़ई हकीकी होना चाहिए। और यही बात कही वल अौला, और ज़्यादा बेहतर ये है अन युसम्मा हाज़ल क़िस्मु बिल जुज़इल हकीकी, और ज़्यादा अौला ये है, ज़्यादा बेहतर ये है कि नाम रखा जाए इस तक़सीम का जुज़ई हकीकी। इस तक़सीम का नाम जुज़ई हकीकी होना ज़्यादा बेहतर है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़, यानी अगर उसके माना मुतअय्यन और मुशख़्ख़स ना हो, वस्तानी मा ला यकूनु मानाहुल वाहिदु मुशख़्ख़सन, यानी जिसके वाहिद माना मुशख़्ख़स ना हो, बल यकूनु लहू अफ़रादुन कसीरतुन, बल्कि उसके बहुत सारे अफराद हो, हुआ ज़रबानी, तो उसकी 2 किस्में हैं। दूसरी कैटेगरी यह है कि माना वाहिद तो हो लेकिन मुशख़्ख़स ना हो, बल्कि उसके माना वाहिद मुशख़्ख़स ना हो, किसी के साथ ख़ास ना हो, बल्कि उसके बहुत सारे अफराद हो। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने एक मिसाल रखी थी फ़रसुन, एक मिसाल रखी थी रजुलुन। माना तो इसके वाहिद है कि एक आदमी, लेकिन इसके माना मुशख़्ख़स नहीं है कि कोई ख़ास आदमी, ज़ैद का ही नाम रजुल है, नहीं, बल्कि ज़ैद का नाम, बकर का नाम, अमर का नाम, इन सब को रजुलुन कहेंगे। तो देखो इसके जो है बहुत सारे अफराद है, एक फ़र्द ये है, एक ये है, एक ये, हालांकि लफ्ज़ के माना क्या है, वाहिद है। तो यही है दूसरी वो किस्म कि जिसके माना वाहिद, जिसके वाहिद माना मुशख़्ख़स ना हो, जिसके माना वाहिद तो लेकिन मुशख़्ख़स ना हो। ये ला यकूनु का जो इसम है वो है मानाहुल वाहिदु, और इसकी जो ख़बर है वो मुशख़्ख़सन है। तो तर्जमा इसी तरह होगा। दूसरी किस्म वो है कि जिसके माना वाहिद मुशख़्ख़स ना हो, तयशुदा ना हो, बल यकूनु लहू अफ़रादुन कसीरतुन, बल्कि उसके बहुत सारे अफराद हो, हुआ ज़रबानी, तो इसकी 2 किस्में है। अहदुहुमा, उनमें से एक, अन यकूना सिद्क़ु ज़ालिकल माना अला साइरी अफ़रादिही अला सबीलिल इस्तिवाई मिन गैरि अन यतफ़ावता बि अव्वलियतिन औ औलवियतिन औ अशद्दियतिन औ अज़ीदियतिन। पहली किस्म यह है कि यह माना वाहिद तो है लेकिन मुशख़्ख़स नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों पर सादिक़ आ रही है। तो ये माना बता रहे कि ये माना सादिक़ आते हो तमाम के तमाम अफराद पर बरसबील बराबरी, यानी बराबर तरीक़े पर सबके ऊपर सादिक़ आ रहे हो। मिन गैरि अन यतफ़ावता बिअव्वलियतिन, बग़ैर फ़र्क़ के अव्वलियत के या औलवियत के या अशद्दियत के या अज़ीदियत के, यानी बग़ैर फ़र्क़ के सबके ऊपर सादिक़ आ रहे। देखो गौर से देखना बच्चों, ये जो रजुलुन है, ज़ैद भी आदमी है, बकर भी आदमी है, अम्र भी आदमी है, तो रजुलुन इसके ऊपर भी 100% सादिक़ आ रहा है, इसके ऊपर भी 100% सादिक़ आ रहा है, और इसके ऊपर भी 100% सादिक़ आ रहा है। तो ये रजुलुन जो है इन तीनों के ऊपर बग़ैर अव्वलियत के, बग़ैर औलवियत के, बग़ैर अशद्दियत के और बग़ैर अज़ीदियत के सादिक़ आ रहा है। तो ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं, मुतवाती। ऐसे लफ्ज़ को क्या कहेंगे कि ये लफ्ज़ मुतवाती है। तो रजुलुन को क्या कह देंगे अब आप, के रजुलुन जो है वो मुतवाती है। उनमें से पहली किस्म यह है कि उस माना का सिद्क़, उस माना का सादिक़ाना उसके तमाम के तमाम अफराद पर हो, बरसबील बराबरी, बग़ैर फ़र्क़ के अव्वलियत के या औलवियत के या अशद्दियत के या अज़ीदियत के। वयुसम्मा हाज़ल क़िस्मु बिल मुतवाती, और नाम रखा जाता है इस तक़सीम का मुतवाती, लितवातुई अफ़रादिही, उसके अफराद के ऊपर मुतवाती होने की वजह से, यानी तमाम के तमाम अफराद के ऊपर क्या है वो सादिक़ आ रहा है।
तवातुन का मतलब है मुसावी, बराबर, उसके तमाम अफराद पर बराबर और मुवाफिक होने की वजह से फ़ी तसादुक़ी ज़ालिकल मानल आमी, उस माने आम के सादिक आने में मुवाफिक और बराबर होने की वजह से। इस किस्म का नाम मुतवातिर क्यों रखा गया है? इसलिए कि उसके अफराद उस माने आम पर, उसके जितने भी फ़र्द है वो उस माने आम पर बराबर तौर पर सादिक आ रहे हैं। यानी देखो, इसके 3 फ़र्द है मिसाल के तौर पे, तो ये तीनों इसके ऊपर बराबरी के साथ सादिक आ रहे हैं। मुसावी है, मुवाफिक है इस लफ्ज़ के। कल इंसानी, जैसा कि इंसान, बिन निस्बत इला ज़ैदिन व अम्रिन व बकरिन, जैसा कि इंसान सादिक आ रहा है ज़ैद पर भी, अम्र पर भी, बकर पर भी, जैसा कि इंसान निस्बत करते हुए ज़ैद, अम्र और बकर की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये चीज़ भी आपकी समझ में आ गई। अब चलते हैं हम तीसरी किस्म की तरफ। तीसरी किस्म का समझना भी इसके ऊपर ही मौकूफ़ है कि देखो, या तो माना मुतय्यन और मुशख्खस हो गए तो आलम है, बेहतर है कि उसको जुज़ी हकीकी कह दिया जावे। और अगर मुतय्यन और मुशख्खस नहीं है तो या तो उसके माना जो है उसके बहुत सारे अफराद हो गए और तमाम अफराद पर बराबर तौर पर सादिक आ रहे होंगे। अगर बराबर तौर पर वो माना सादिक आ रहे हैं तमाम अफराद पर तो मुतवाती है। और अगर बराबरी तौर पर अगर तमाम अफराद पर बराबरी के साथ सादिक नहीं आ रहे बल्कि कमी बेशी के साथ सादिक आ रहे हैं तो उसको कहते हैं मुशक्किक। यही है वसानी हिमा। और उन दोनों में से दूसरी किस्म यह है अन ला यकूना सिद्क़ु ज़ालिकल मानल आम्मी फ़ी जमीअ अफ़रादिही अला वजहिल इस्तिवाई, के सादिक ना आए वो माने आम तमाम के तमाम अफराद में बरसबील बराबरी सादिक नहीं आए। बल यकूनु सिद्क़ु ज़ालिकल माना अला बाज़िल अफ़रादी, बल्कि उस माना का सिद्क़ उसके बाज़ अफराद पर कैसे हो? बिअव्वलियतिन, अव्वलियत के साथ या अशद्दियत के साथ या औलवियत के साथ हो। वसिद्क़ुहा अलल बाज़िल आखरा बिअज़दादि ज़ालिका, और उसका सिद्क़, उसका सादिक़ाना दूसरे बाज़ पर उसके अज़दाद के साथ। कल वजूदी, जैसा कि लफ्ज़ वजूद, बिन निस्बति इलल वाजिबी, निस्बत करते हुए वाजिब की तरफ, वाजिब ताला की तरफ, जल्ला मजदुहु, उसकी इज़्ज़त बुलंद हो। व बिन निस्बति इलल मुमकिन, और निस्बत करते हुए मुमकिन की तरफ। वकल बयाज़ी, और इसी तरह सफ़ेदी, बिन निस्बति इलल सल्जी वल आमी वल आजी, निस्बत करते हुए बर्फ़ की तरफ और हाथी के दांत की तरफ। वयुसम्मा हाज़ल क़िस्मु मुशक्किकन, और इस किस्म का नाम रखा गया है मुशक्किक। लिअन्नहु युक़िउन नाज़िरा फ़ी शक्की फ़ी कौनिही मुतवातियन औ मुश्तरकन, इसलिए कि वो डालता है देखने वाले को शक में या गौर करने वाले को शक में डालता है उसके मुतवाती होने की वजह से या मुश्तरक होने की वजह से। ये फसल मुकम्मल हो गई। दूसरी किस्म को समझाना बाकी है। यह कहा गया है कि लफ्ज़ अपने माने आम पर, यह लफ्ज़ है, यह अपने माने आम पर बराबरी के साथ सादिक ना आए बल्कि किसी के ऊपर ज़्यादा सादिक आ रहा, किसी के ऊपर कम सादिक आ रहा। मिसाल इसकी दी है जैसा कि वजूद जो है, कहते हैं ना कि भाई वजूद जो है वो किसकी सिफत है? अल्लाह तबारक व तआला की। तो वजूद ख़ास है वाजिब के साथ, तो वजूद वाजिब के साथ ख़ास है अव्वलियत के साथ, यानी मौजूद होना अल्लाह ताला के साथ ख़ास है, तो मौजूद होना अव्वलियत के साथ ख़ास है। और इसी तरह ही लफ्ज़ वजूद जो है जब इसकी निस्बत करेंगे मुमकिन की तरफ तो वजूद का मतलब मुमकिन भी आता है, लेकिन वो सानवी दर्जे में रखता है, सानवी दर्जे में आता है वो, यानी पहला माना जब वजूद का होगा तो वो उसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला के साथ होगी। इसी तरह एक मिसाल दी सफ़ेदी की, कि सफ़ेदी दो चीज़ों के अंदर होती है। एक तो सफ़ेदी होती है बर्फ़ के अंदर और एक सफ़ेदी होती है हाथी दांत के अंदर। तो
جب برف کی طرف نسبت کرے گے سفیدی کی، بیاض کی نسبت جب برف کی طرف کرے گے تو یہاں پر معنی اولیت کے ساتھ آ رہے ہیں، اولیت کے ساتھ یا پھر اشدیت کے ساتھ آ رہے ہیں، یعنی شدید، شدت بیاض، یعنی بہت زیادہ سخت والی سفیدی ہوتی ہے برف کے اندر، اور بہت زیادہ ہلکے والی جو سفیدی ہوتی ہے وہ ہاتھی دانت کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا نام مشکک ہوتا ہے کیونکہ یہ شک میں ڈالنے والی ہے۔ وجہ مشکک کیوں ہے اس کی وجہ یہ لکھی ہے یہاں سے یہاں تک، لِأَنَّهُ يُوقِعُ النَّاظِرَ فِي الشَّكِّ، اس لیے کہ وہ دیکھنے والے کو شک میں ڈالتی ہے اس کے اس بات میں کہ وہ متواتی ہے یا مشترک ہے۔ تو یہ سبق یہاں پر مکمل ہو گیا۔ میں نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا کہ ترجمہ اور معنی اور مطلب دونوں ہی سمجھ میں آ گئے۔